Good morning, dear students. How are you? Welcome back to computer class and hope you have remembered in my last video I have covered till page number 18. Okay ना? मैंने पेज नंबर 18 तक आपको कवर किया था and in that I have explained till deletion of files and folders. Okay? मैंने क्या बताया था कि कहाँ तक समझा दिया था डिलीशन ऑफ files and folder, how to delete the files or folders from the computer. Okay, and today we will cover the remaining part of chapter number 2. Okay, and the name of the chapter is Windows 7. Okay, now see from page number 19. Your heading is रिस्टोरिंग डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स. ओके, अभी हमने प्रीवियस क्लास में वीडियो में क्या देखा था कि हाउ टू डिलीट फाइल्स एंड फोल्डर्स. ओके, एंड नाउ वी विल डिस्कस रिस्टोरिंग डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर्स. रिस्टोर मीन्स टू ब्रिंग बैक. ओके, मीन्स एक्सीडेंटली if you have deleted any file or folder, you can recover it back from the recycle bin. Okay, recycle bin is the place where all the deleted files and folders goes. Okay, so you can restore your file or folder even after you have deleted it. Okay, it is clear if you can recover or you can restore a file or folder you have deleted. All the files and folders you deleted move to the recycle bin. Okay, whichever file or folder you have deleted, जो भी file or folders आपने delete किए हैं, that directly goes to recycle bin. Okay, and the recycle bin icon is present on the desktop. Okay, it is always there. Once you have deleted any file or folder, you will see your recycle bin gets full. Okay, and when you empty the recycle bin, and then it becomes empty. Okay, when you restore a file or folder, it moves back to the location from where it was deleted. Okay, when you restore a file or a folder which you have deleted earlier, that moves back to the location from where it was deleted. जहाँ से इस फाइल और फोल्डर को डिलीट किया था, जिस लोकेशन से आपने डिलीट किया था, that file or folder will moves back to the particular location. Okay, to restore a file or folder we have to follow the given steps. Okay, आपको फाइल को, डिलीटेड फाइल को और रिकवर करने के लिए, फोल्डर को रिकवर करने के लिए या रिस्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा. सबसे पहले डेस्कटॉप पे जाइए. ओके, गो टू द डेस्कटॉप एंड डबल क्लिक ऑन द रिसाइकल बिन आइकन ऑन द डेस्कटॉप. ओके, आफ्टर दैट क्लिक ऑन द फाइल, यू विल फाइंड ऑल द डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर देयर इन द रिसाइकल बिन. रिसाइकल बिन के अंदर आपको सारी डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर्स मिलेंगी जो आपने डिलीट किए. ओके, एंड यू हैव टू सिलेक्ट द फाइल और पर्टिकुलर फोल्डर विच यू वांट टू रिकवर और रीस्टोर. ओके, एंड देन आफ्टर दैट क्लिक ऑन द रिस्टोर दिस आइटम ऑन द टूल बार. ओके, यू कैन क्लिक राइट क्लिक आल्सो on the item or the deleted folder or file, or you can click on the restore button on the toolbar of the window, recycle window. Okay, what you will see, that particular file or selected file or folder will be restored to its original location. Okay, next is copying a file or folder. Okay, in window you can copy a file or folder to different location. What do you mean by copy? Means making a duplicate copy of the file or folder.
मीन्स एक फाइल और फोल्डर की एक और डुप्लीकेट कॉपी बनाना टू अनदर लोकेशन. ओके, to copy a file or folder from one location to another, follow the steps given below. Okay, number one is click on the file to select it. Okay, click on the file or folder which you want to copy. Copy means making a duplicate copy of the file or folder. So select the file or folder which you want to copy. जो फाइल आपको कॉपी करनी है या फोल्डर कॉपी करना है उसको आपको सिंगल माउस क्लिक से क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है. देन क्लिक ऑन ऑर्गेनाइज ऑन द टूल बार. ओके, विंडो एक्सप्लोरर के ऑर्गेनाइज बटन पे आपको क्लिक करना है. दैट इज प्रेजेंट ऑन द टूल बार. देन अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन कॉपी ऑप्शन. ओके, कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. देन पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर विल बी कॉपीड and open the folder where you want to the file to be copied. ओके, आपको न्यू लोकेशन पे जाना है जहां पर आपको फाइल या फोल्डर को पहुंचाना है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी. उस फोल्डर को खोलिए एंड देन अगेन क्लिक ऑन ऑर्गेनाइज बटन ऑन द टूल बार एंड व्हेन यू क्लिक ऑन ऑर्गेनाइज बटन यू विल फाइंड अ पेस्ट ऑप्शन देयर. ओके, एंड क्लिक ऑन पेस्ट टू कॉपी द फाइल्स टू द desired location. Okay, when you choose paste option, what will happen? The location which you have selected, जो लोकेशन आपने सेलेक्ट की है, जो फोल्डर आपने सेलेक्ट किया है कॉपी करने के लिए, वो फाइल और फोल्डर उस लोकेशन पे पहुंच जाएगी. ओके, एंड इंस्टेड ऑफ डूइंग विद द हेल्प ऑफ माउस देयर आर these keyboard shortcuts are also there to copy and cut and paste. Okay, for cut you can use Ctrl plus X. For copying a file or folder you can use Ctrl plus C, and for pasting you can use Ctrl plus V. Next heading is moving a file or folder. Okay, moving is different from copying. Okay, moving is different from copying. moving में क्या होता है कि एक उसकी डुप्लीकेट कॉपी आप न्यू लोकेशन पे उसको पेस्ट करते हैं तो क्या होगा, दो जगह पे सेम कॉपी बन जाएंगी. ओके, लेकिन मूविंग इज डिफरेंट फ्रॉम कॉपी. मूविंग अ फाइल और फोल्डर, मूविंग मीन्स क्या है, यू आर मूविंग, यू आर जस्ट चेंजिंग द प्लेस ऑफ अ फाइल और फोल्डर. ओके, You can also move a file or folder from one location to another. आप किसी फाइल और फोल्डर को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव कर सकते हैं. मीन्स यू आर चेंजिंग द प्लेस और पोजीशन ऑफ द फाइल और फोल्डर. आप किसी फाइल और फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रहे हैं तो क्या होगा, जहाँ से आप उसको उठाएंगे वो वहाँ नहीं रहेगा, आप मूव करके आप उसे न्यू लोकेशन पे ले जा रहे हैं. ओके, टू मूव अ फाइल और फोल्डर we have to follow the steps. Okay, what are the steps? Again click on the file or folder to select it. आपको क्लिक करना है जो फाइल या फोल्डर को आप मूव करना चाहते हैं. then click on organize on the toolbar. Okay, when you click on organize button on the toolbar you will find a cut option there. cut means काटना, means वहाँ से हटाना. as soon as you cut the file or folder by clicking on cut option, what will happen? Then open the folder where you want to move it. अब क्या करना है, you have to choose a new location. नई लोकेशन जहाँ पर फाइल या फोल्डर को ले जाना चाहते हैं तो आपको एक फोल्डर चूज करना है जहाँ पर उसकी न्यू पोजीशन आपको बतानी है. एंड अगेन क्लिक ऑन organize button on the toolbar and you have to do paste. Okay, to paste the file to the new location. What will happen, you will see that particular or selected file or folder, जो फाइल आपको फोल्डर आपने सेलेक्ट किया है, that will be moved from previous location to new location. Okay,
आपको पुरानी जगह पे वो फाइल या फोल्डर नहीं मिलेगा वंस यू हैव पेस्टेड इट, एंड द चूजन फाइल is moved to another location. Okay, once you click the paste option, the chosen file will be moved to the another location or the new location. Okay. Next is your selecting multiple files or folders. Okay, in Window Explorer or in any folder, you can select multiple files or folders for कट, कॉपिंग और मूविंग। अभी आपने क्या देखा था कि आप एक फाइल या फोल्डर को मूव करवा रहे हैं या उसको कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन और वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू यूज पेस्ट ऑप्शन फॉर कट एंड कॉपी। कट करेंगे किसी फाइल और फोल्डर को, देन ऑल्सो यू हैव टू पेस्ट द फाइल और फोल्डर टू न्यू लोकेशन, or if you are copying a file or folder, again you have to use paste option for copying a file or folder to another location. Okay, sometimes क्या होता है, हमें मोर देन वन फाइल कॉपी करनी होती है या फोल्डर कॉपी करना होता है एक से ज़्यादा, so we can select multiple files, means more than one files or folders for copying or cutting purpose or moving purpose. To select a file or folder, you need to click on it. Okay, आपको पता है कि सिंगल क्लिक से कोई फाइल और फोल्डर आपका सिलेक्ट हो जाता है. Okay, you can also select multiple files and folders at a time. एक बार में आप एक फाइल्स और फोल्डर्स को, एक से ज़्यादा फोल्डर्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके, हाउ टू सेलेक्ट एडजेसेंट फाइल्स और फोल्डर्स. एडजेसेंट मीन्स एक के बाद एक, मतलब एक के नीचे एक. ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, यदि लगातार फाइल्स और फोल्डर्स आपको सिलेक्ट करनी है तो उसमें कोई हेडेक नहीं है. क्लिक ऑन द फर्स्ट फाइल और फोल्डर. पहली फाइल या फोल्डर जो दिया हुआ उसको सिलेक्ट कीजिए एंड देन प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की. शिफ्ट की को प्रेस करके दबा के रखिए एंड क्लिक ऑन द लास्ट फाइल और फोल्डर. तो आपको कहाँ से कहाँ तक फर्स्ट फाइल या फोल्डर पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद में प्रेस द शिफ्ट की और शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है एंड क्लिक ऑन द लास्ट फाइल और फोल्डर. आप देखेंगे जो फर्स्ट और लास्ट फोल्डर या फाइल आपने सिलेक्ट की उसके बीच में जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं दैट ऑल विल बी सिलेक्टेड. ओके, ऑल सिलेक्ट हो गई. फिर आप उसको यू कैन मूव देम टू अ न्यू लोकेशन और यू कैन कॉपी them to the new location. Okay, and to select non adjacent files or folders. कभी non adjacent means अलग अलग, मीन्स एक को छोड़ के एक के बाद ऐसे करके, ठीक है ना. तो इसके लिए क्या है, क्लिक ऑन द फर्स्ट फाइल. फर्स्ट प्रोसेस वही रहेगा. पहली फाइल जो आपको मूव सिलेक्ट करनी है उस पर आपको सिलेक्ट करना है, देन प्रेस एंड होल्ड द कंट्रोल की. कंट्रोल की को प्रेस करके उसको होल्ड रखिए, मीन्स उसको दबा के रखिए और देन क्लिक ऑन द फाइल्स एंड फोल्डर्स यू वांट टू सिलेक्ट. और जो फाइल और फोल्डर आपको और सिलेक्ट करने आप माउस बटन से क्लिक करते जाइए. आप देखेंगे अलग अलग जगह पर आपकी जो जहाँ क्लिक कर रहे हैं तो डिफरेंट प्लेसेस पे आपकी फाइल्स और फोल्डर्स सिलेक्ट हो जाएंगे. और फिर उसके बाद में यू कैन मूव दैम टू अ न्यू लोकेशन. नई लोकेशन पे ले जा सकते हैं सारी फाइल्स और फोल्डर्स को जो भी सिलेक्टेड है और यू कैन कॉपी देम. ओके, आप नीचे पिक्चर देख सकते हैं, ये सिलेक्टिंग एडजेसेंट फाइल्स आप देखते हैं, यहाँ देख रहे हैं कि ये मैंने माई पिक्चर्स फर्स्ट फोल्डर सेलेक्ट किया है एंड आई हैव सिलेक्टेड ऑन न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट. आप क्या देख रहे हैं, फर्स्ट और लास्ट पे मैंने क्लिक किया है बाय प्रेसिंग शिफ्ट की. बीच में जो भी फाइल्स और फोल्डर्स आए थे वो सारे सिलेक्ट हो गए. और नॉन एडजस्टेड में आप देख सकते हैं, फर्स्ट फोल्डर पे मैंने क्लिक किया माई पिक्चर्स पे और उसके बाद में लिस्ट पे क्लिक किया. उसके बाद में ये सन आपका एक फोल्डर दिया वहाँ क्लिक किया. तो आप देख रहे हैं कंट्रोल की प्रेस करने के बाद में मैं जिन फाइल्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ अलग अलग फाइल वो या फोल्डर आपके सिलेक्ट हो रहे हैं. ओके, एंड इफ यू वांट टू सिलेक्ट ऑल द फाइल्स और फोल्डर्स ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेशन, किसी फोल्डर में
जितनी फाइल्स और फोल्डर्स हैं सारी आपको सिलेक्ट करनी है। सिंपली यू हैव टू प्रेस कंट्रोल ए, मीन्स कंट्रोल बटन के साथ में आपको ए प्रेस करना है, ए फॉर ऑल। कंट्रोल ए मीन्स सिलेक्ट ऑल फाइल्स, ए फॉर ऑल। And changing the view of the files. Okay, you are working in Windows Explorer, you can change the view of the files and folder, how they appear on the screen, means you can change the look or view of the files or folders. Windows 7 provide many different ways to view files or folders in Windows Explorer. Windows 7 में mainly आपके many ways दिए हुए हैं, mainly 4 ways are there to view your files or folders in Windows Explorer. These views change the preview of all the files or folders. तो जो भी व्यू आप चूज करेंगे, as per that view your files and folder will be displayed in a particular window. ठीक है, click on the drop down arrow on the change your view button. आप देखेंगे टूल बार पे एक ड्रॉप डाउन एरो दिया हुआ है चेंज व्यू बटन का ऑन द टूल बार, एंड चूज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज. यू कैन चूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज, बट रिमेंबर ये ध्यान रखिए कि एट अ टाइम यू कैन सिलेक्ट ओनली वन व्यू. ओके, देयर आर 4 व्यूज अवेलेबल, बट एट ए टाइम एक बार में केवल आप एक व्यू को देख सकते हैं. इफ यू वांट टू चेंज द व्यू you can choose the other view. Okay, next is grouping files and folders. You can group your files and folder as per your requirement. अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप फाइल्स और फोल्डर्स को ग्रुप भी कर सकते हैं. ओके, ग्रुपिंग arranges the files and folders into different sections depending on the types of grouping you need. Okay, तो किस तरह की आपको ग्रुपिंग करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. उसी हिसाब से क्या होगा आपके फाइल्स एंड फोल्डर्स. ग्रुपिंग मीन्स अरेंजिंग द फाइल्स इन ए प्रॉपर मैनर. ओके, सपोज फॉर एग्जांपल आई एम प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर एंड ऑल द वर्क रिलेटेड टू क्लास 5. व्हाट आई विल डू, आई विल ग्रुप अ पर्टिकुलर folder and I will save all the files in that particular folder. इससे क्या होगा, ग्रुपिंग करने से क्या होगा, इजीली आई कैन सी द फाइल्स एट वन लोकेशन. एक लोकेशन पे मुझे सारी क्लास 5 की फाइल मिल जाएंगे. ठीक है, बिलो आर द स्टेप्स टू ग्रुप फाइल्स एंड फोल्डर्स. फर्स्ट वन इज राइट क्लिक ऑन एन एम्प्टी एरिया ऑफ विंडो एक्सप्लोरर. ओके, विंडो एक्सप्लोरर के एम्प्टी मीन्स खाली एरिया में यू हैव टू राइट क्लिक विद द हेल्प ऑफ माउस एंड आफ्टर दैट click on group by option from the shortcut menu. When you right click, you will find a shortcut menu. From there you will choose group by option and choose from the group by option. Okay, group by option you will find 4 options available. Okay, there are 4 group by options. First one is name. Okay, second is date modified, and third is type, and the last one is size. Okay, you can group your folder by name, date, modified, and type and size. Okay, in 4 ways you can group your file or folder. Okay, next is your next heading is libraries in Windows 7. Okay, I think this is your last heading of the chapter number 2. What are libraries? Windows 7 has a new feature called libraries. Okay, libraries helps you to manage your files in a better way. So with the help of libraries, you can arrange or manage your files and folder in a better way. Libraries is a collection of files and folder. It is also a collection of files and folder for arranging your files or folders properly
Okay, these files and folders can be located in different drives and locations on your computer. Okay, ये जो फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं आपकी ड्राइव पे, हार्ड डिस्क ड्राइव पे, किसी भी लोकेशन पे अवेलेबल हो सकते हैं। एंड इट डज नॉट क्रिएट शॉर्टकट टू दीज फाइल्स, ये आपकी इन फाइल्स की कभी भी शॉर्टकट क्रिएट नहीं करता है विंडोज। ओके, इट जस्ट डिस्प्ले ऑल दिस फाइल्स एट वन प्लेस। क्या होगा, तो जो भी आप लाइब्रेरी का फोल्डर होगा वो उससे रिलेटेड जो भी फाइल्स होंगी वो ऑटोमेटिकली आपके उस फोल्डर में या उस लाइब्रेरी में सेव होती जाएगी। ओके, विंडोज 7 कम्स विथ 4 डिफॉल्ट लाइब्रेरीज। ओके, विंडोज 7 में क्या है, देर आर 4 डिफॉल्ट मीन्स पहले से जो लाइब्रेरीज बनी हुई आती हैं। फर्स्ट वन इज डॉक्यूमेंट्स फॉर कीपिंग योर डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स, म्यूजिक फॉर म्यूजिक फाइल्स, पिक्चर्स फॉर पिक्चर्स फाइल्स एंड वीडियोज फॉर वीडियोज। ओके, and these are shown on the left panel of every Windows Explorer window. विंडो एक्सप्लोरर विंडो है, उसके ये लेफ्ट पैनल में लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देंगी। यू कैन क्लिक ऑन द लाइब्रेरीज आइकन ऑन विंडो एक्सप्लोरर नेविगेशन टू ओपन लाइब्रेरीज। ठीक है, आप विंडो एक्सप्लोरर को खोल के लाइब्रेरीज पे क्लिक करोगे, इन विंडो एक्सप्लोरर नेविगेशन टू ओपन लाइब्रेरीज यू कैन सी द विंडो एक्सप्लोरर picture. Okay, and I have marked over here, see the libraries, documents, music, pictures and videos. Okay, so these are libraries available in Windows, but you can create of your own, अपनी नाम से भी, आप न्यू नेम से भी आप लाइब्रेरी को क्रिएट कर सकते हैं फॉर अरेंजिंग और मैनेजिंग योर फाइल्स और फोल्डर। ओके, so student, this was for today's class and I have finished the chapter number 2 and thank you for being with me, for joining the class. Okay, thank you very much.